situation in Delhi, the likes of which I have never seen in my life and I hope to never see again. It's like a war zone, losing someone every 30 minutes. All the crematoria are working overtime. There is a new crematorium with 100 pyres, which is just not too far from here. My own phone is constantly with messages about people who need oxygen. Can you get a bed here? Can I get some drugs here? This is not once in a day, it's every 2 minutes. And we're just unable to help. There are many people who are dying. I know of a young couple in their 30s who died leaving behind 2 orphan children. And literally just before I joined this interview, one of my colleagues at work, one of his nephews who was only 21 years old died. And these are absolutely heartbreaking. I mean, at the end of the day, it's a human tragedy which is unfolding at a really mass scale in India. And it's utterly depressing. It's mind-numbing. There's a desperate shortage of supply of oxygen in hospitals. Gangaram, which is one of India's best hospitals here in Delhi, essentially lost 25 patients just a few days ago because the oxygen supply ran out. Earlier this afternoon, I had a request from someone who was a very senior bureaucrat till just a couple of years ago. Him, his wife, his daughter-in-law, and his mother-in-law, all in desperate need of oxygen. So this is not... More than 7.5 million COVID-19 cases have been reported since India's second wave began 2 months ago. But medical experts believe the real number could be up to 10 times more. Ishan Garg reports. Crematoriums are running out of space and incinerators incapable of keeping up are melting down as deaths continue to mount all across the country. The government says for the size of its population, India is faring better than many countries. The United Kingdom, a country with a population of 66 million as compared to India's 1.3 billion, has reported almost half the number of deaths as India. But experts say India's official death figures could only be 1/10 of the real COVID fatalities in the country. And its overall death toll could be close to 2 million, the highest in the world. They are worried that inaccurate data is botching India's pandemic response. Poor quality data doesn't help anyone. It doesn't help policymakers. It doesn't help the general public. In fact, it could also lead to a breakdown of trust in the system because there is a clear discrepancy between what is seen on the ground versus what is being reported. Doctors say COVID deaths occurring outside medical facilities are not being counted. Neither are those who've never tested positive for the virus despite having it. To make matters worse, millions in the country do not have a testing facility close by, especially in rural areas. That makes underreporting of cases the root cause of underreporting of deaths. There are also concerns that the doubly mutated strain first discovered in India is not showing up on test reports, necessitating more advanced testing for suspected COVID patients. And if they want to actually report it correctly, they should also start, taking in account of the CT scan of the patient. Lung infections due to COVID can show up on CT scans, even though the popularly used RT-PCR tests may miss it. Experts estimate that India is already seeing more than 1 million new infections every day in reality. However, most of them are not reflected in the official numbers, and things could get worse from here. सबसे पहले IHME की रिसर्च की बात करते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से हम आंकड़ों के मकड़जाल में उलझे हैं। किसी का दुनिया से जाना आंकड़ा भर बनकर रह गया है और निर्दयी सरकारों के लिए कई लोग आंकड़ों में भी नहीं हैं। आप पिछले कुछ समय से लगातार भारत से जुड़ी ऐसी रपटें देख रहे होंगे जिसमें सरकारों की बेईमानी साफ झलकती है। अंतिम संस्कार सैकड़ों में होते हैं, सरकारी फाइलें इकाई या दहाई में समेट देती हैं। ऐसा सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है। सरकारी आंकड़े के अनुसार दुनिया भर में लगभग 15.5 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हुए और मरने वालों की संख्या 32.5 लाख के करीब है। लेकिन हेल्थ रिसर्च से जुड़े एक स्वतंत्र संगठन IHME ने कुछ और बताया। ये संस्था दुनिया भर में स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों और उसके प्रभाव का अध्ययन करती है। इसकी स्टडीज पर व्हाइट हाउस में भी चर्चा हो चुकी है। दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञ इनकी रपटों पर नजर रखते हैं। IHME ने अपनी हालिया रिपोर्ट में दावा किया कि कोरोना से हुई मौतों की संख्या लगभग 69 लाख है, यानी सरकारी आंकड़े से भी दोगुने से ज्यादा। इस आकलन का सीधा संबंध टेस्टिंग की संख्या से है। IHME के डायरेक्टर क्रिस्टोफर मर्रे ने कहा कि अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे तो कोरोना से जुड़ी मौतों को पकड़ पाना नामुमकिन होगा। ये आंकड़े किस हद तक चौंकाने वाले हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस खेल में कोई देश पीछे नहीं।
अमेरिका में कोरोना से होने वाली मौत का सरकारी आंकड़ा 5.74 लाख है, लेकिन रिसर्च कहती है कि यहाँ कोरोना से 9.05 लाख लोगों की जान गई। मैक्सिको का सरकारी ग्राफ 2.17 लाख और रिसर्च में असली आंकड़ा 3 गुना ज़्यादा। रूस ने अब तक 1,10,000 मौतें रिपोर्ट की, लेकिन ये स्टडी कहती है कि यहाँ कोरोना से लगभग 6 लाख मौतें हो चुकी हैं, यानी सरकारी आंकड़े से लगभग 6 गुना ज़्यादा। बाकी देशों का भी यही हाल है। जहाँ तक भारत की बात है, सरकार कह रही कि देश भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2.21 लाख है, लेकिन IHME की रिपोर्ट कहती है कि ये आंकड़ा कम से कम 6.54 लाख है, यानी 6,54,000 लोग कोविड के चलते मरे। और गौर करिए कि ये रिपोर्ट टेस्टिंग के आंकड़ों पर आधारित है, और हम और आप जानते हैं कि हमारे देश में टेस्टिंग भी कितनी हो रही है। इस रिपोर्ट में सिर्फ उन्हीं मौतों को शामिल भी किया गया है जिनका सीधा संबंध कोरोना वायरस से था। महामारी की वजह से जो बाकी इलाज प्रभावित हुए, उनको इस स्टडी का हिस्सा नहीं बनाया गया। आकलन का तरीका क्या था? जटिल प्रोसेस था। बेसिक समझते हैं। कोरोना महामारी से पहले किन वजहों से लोगों की जान जाती थी, उसका ट्रेंड क्या था, कोरोना काल में कुल कितनी मौतें हुई, और इन सारी गणनाओं की पड़ताल के बाद रिपोर्ट रिलीज हुई। आंकड़ों में धांधली की वजह क्या बताई रिपोर्ट में? पहली, कई देशों में उन्हीं मौतों को कोरोना के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है जो अस्पतालों में हुई और मरीज में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। जिन जगहों पर हेल्थ सिस्टम कमजोर है, अस्पतालों की कमी है, कोरोना टेस्टिंग की सुविधा नहीं है, वहां अधिकांश मरीज अस्पताल के इंतजार में दम तोड़ रहे हैं। दूसरी वजह, संसाधन और इच्छा शक्ति की कमी। इसे सरकार की नाकामी भी कहा जा सकता है। कोरोना संक्रमण जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उसे ट्रेस करना मुश्किल है। इस काम के लिए प्रशिक्षित स्टाफ और मैराथन प्रयासों की जरूरत है। जो सरकारें अपने नागरिकों को बुनियादी इलाज देने में फेल हैं, उनसे इसकी उम्मीद लगाना बेईमानी होगा। तीसरी वजह, सरकारों का प्रोपेगेंडा टूल। कोई भी सत्ताधीश अपनी नाकामी स्वीकार नहीं करना चाहता, इससे उसका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है। ऐसी सरकारें प्रोपेगेंडा फैलाकर मौत को कम दिखाती हैं या आपका ध्यान दूसरे मुद्दों की तरफ भटकाने की कोशिश करती हैं, ताकि सब चंगा नजर आए या वो जवाबदेही के घेरे से बाहर चले जाएं और नेताजी की कुर्सी बची रहे। रिपोर्ट तैयार करने वालों का मानना है कि कोरोना महामारी हमारी आपकी सोच से कहीं ज़्यादा भयावह है। अब जबकि हमें इसके स्तर का आभास हो चुका है, हम बेहतर तरीके से शायद कोरोना से निपटने के उपाय तैयार कर पाए। लेकिन ये सरकारों पर निर्भर है कि वो इसे झुटलाने में अपना वक्त ज़ाया करें या महामारी की विकरालता के अनुसार लड़ने की तैयारी